Thank you, sir. Okay, thank you very much. Sri Satish Chandra Mishra. So before coming to the main issue of the FDI and increase from 26 to 49%, I would bring two aspects into consideration of the House and the Honorable State Minister, and that is with respect to Section 6 and Section 27A. Now in Section 26, you have earlier the act which was there, it was providing that the minimum equity capital requirement is rupees 100 crores for life insurance or general insurance and rupees 200 crore for a person exclusively in the business of the insurance. The minimum equity capital requirement is now rupees 50 crores for a person exclusively in the business of health insurance. But this has now been amended, and it has been brought that minimum paid up capital requirement for a person exclusively in the health insurance business is rupees 100 crores, which is maintained. An insurer, in order to be registered, now this is what I want to bring into consideration is, it says that an insurer, in order to be registered, has to have net owned funds of at least 5,000 crores rupees. ये जो 5,000 करोड़ रुपए की बात आपने इसमें डाली है जो पहले नहीं थी, इस 5,000 करोड़ आप कह रहे हैं जिसकी नेट वर्थ होगी वो ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है अगर उसको कंपनी एज ए इंश्योरर कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि पहले नहीं थे। इस तरीके से आप किन कंपनियों को लाना चाहते हैं? आप जो भारतीय जनता पार्टी का इस समय चल रहा है कि हमको कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को या कुछ लोगों को सारा देश का जो बिजनेस है और हर चीज़ दे देनी है, तो इस उद्देश्य के तहत ये लाया गया 5,000 करोड़ बाकी सबको एक्सक्लूड करने के लिए, या इसके पीछे आपका क्या मंशा है? इसको जरा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इट परमिट्स वेरी लिमिटेड कंपनीज नाउ टू कम इनटू द स्फीयर ऑफ दिस बिजनेस। सेक्शन 27A में जो दूसरा एस्पेक्ट है, आपने उसमें पहले अभी हमारे जो हमसे पहले बोल रहे थे हमारे साथी, उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश इस बात से हैं कि आपने प्रोवाइड कर रखा है कि इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया शैल बी एक्सक्लूडेड, लेकिन इसके आगे आपने फर्दर अमेंड कर दिया है, वो शायद पोर्शन पढ़ने से रह गया होगा, मैं उसको आपके सामने ला रहा हूं। जो सेक्शन 27A में आपने डाल दिया है, आपने कहा है कि नो इंश्योरर कैरिंग ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शैल इन्वेस्ट or keep invested any part of his controlled fund, and no insurer carrying on general business shall invest. Now this is important. Life insurance के बारे में आपने वो maintain किया, वो सही कहा उन्होंने कि life insurance के बारे में you cannot invest this money which you are taking from the persons who are giving their hard earned money insurance कराने के लिए, कि आप उसको invest किसी और चीज़ में नहीं कर सकते हैं, कहीं और नहीं ले कर सकते हैं, लेकिन general insurance के लिए you have made an amendment. And this amendment says, fund and no insurer carrying on general business shall invest or keep invested any part of his assets otherwise than in any of the approved investments as may be specified by the regulations, subject to such limitations, conditions and restrictions therein. Now in the Act you have taken away the cap. The restriction which was imposed under the statutory legislation and statutory provisions of the Act, that you cannot invest, for which applaud was given, but that continues for life insurance, but others you have removed. And you say that now you will allow it on the basis of the regulations which you may bring and which you may prescribe subsequently. Now we all know that regulations or the prescribed rules, they are all executive actions. You have to simply frame it at the executive level and place it over here. So you can frame any type of rules, and put conditions for taking away this cap and allowing them to invest anywhere else, including outside the country. Now, if this restriction is not there, that is a very dangerous thing so far as the persons who are investing their money into the insurance, or they're getting themselves insured in a company becomes bankrupt, or by saying that it puts its money outside the country and then it says Tata bye-bye. So that is a very dangerous thing which is being brought
under section 27A, and this you should take into consideration. Now, since the time is so limited, and I'm seeing that already the indication is coming, तो मैं अपने दूसरे जो FDI के बारे में उसके बारे में कहना चाहूँगा। आपने 26% से 49% कर दिया। ये सरकार जो आई है, पहले ये 49% लाना चाहते थे, यूपीए सरकार लानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हम उनके वेलफेयर के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे उसके बाद जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था। हमारी नेता, हमारी पार्टी की नेता, हमारी नेता बहन मायावती जी ने उस समय उनसे एक सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि आप सब जगह इन शेड्यूल कास्ट की आप कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, उनका वेलफेयर बढ़ाएंगे, लेकिन आप ऐसी योजना बनाते जा रहे हैं जिससे कि इनकी नौकरियां का रास्ता आप बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं, और इनका वेलफेयर कैसे करने जा रहे हैं। आज आप एफडीआई के माध्यम से सब चीज़ों को, एफडीआई आप कह रहे हैं हम डिफेंस में 100% ला रहे हैं, हम रेलवे में 100% ला रहे हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही नहीं है। आज लाइफ इंश्योरेंस जो है, LIC जो है, वो इस देश की लाइफ लाइन है, इस देश की एक्चुअल लाइफ लाइन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। कोई सरकार, कोई चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हो, ख्याल नहीं रख पाती हैं जितना कि लाइफ इंश्योरेंस रखती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रखती है। आज आप उसको खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हैं हम विदेश से लाएंगे यहाँ पर, और ला करके 49% बढ़ा करके हम FDI ला करके इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। और इसी तरीके से आप कहते हैं कि आप रेलवेज को ले जा रहे हैं 100% करके, क्योंकि आपको बुलेट ट्रेन बनानी है, आपको 50,000 करोड़ रुपया चाहिए मुंबई से लेकर के अहमदाबाद जाने के लिए, जबकि उसमें फ्लाइट में एक दो फ्लाइटें नहीं है, कम से कम 100 फ्लाइटें जाती हैं मुंबई और इलाहाबाद के बीच में। ट्रेन जब बन जाएगी तो उसका जो किराया होगा फ्लाइट से ज़्यादा होगा, लेकिन हम 50,000 रुपये खर्चा, 50,000 करोड़ खर्चा करेंगे पब्लिक के पैसे से अहमदाबाद ले जाना। इसलिए आप ले जाइए अहमदाबाद, गुजरात ले जाइए सब चीज़, लेकिन आप इन गरीबों के ऊपर तो ध्यान रखिए। आप जो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC हैं, उनके हक को तो मत मारिए। आज आप जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो, चाहे ONGC हो, चाहे ऑयल इंडिया हो, आज ये फैक्ट है जो किसी से नहीं छुपा है कि ये जो वर्ग है, इनके पास कहीं कोई जॉब नहीं है। इनके पास सरकार में जो कहते हैं कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के तहत सरकार में जॉब तो मिल रही है आपको, सरकार में जॉबें सब एग्जॉस्ट हो चुकी हैं एक स्टेज पर। अब तो जब कोई रिटायर होता है तब नई जॉब मिलती है, पुरानी जॉब्स खत्म की जा रही हैं, कोई नई जॉब नहीं आ रही। तो आखिर कहां पर इनको जॉब मिलेगी? इनको इन्हीं जगह जॉब मिलती थी। आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, आप रेलवे को करना चाहते हैं, आप डिफेंस को करना चाहते हैं, आप सारे पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन को करना चाहते हैं। आप इस तरह, आपने जितने म्यूनिसिपैलिटीज हैं जहां पर कि मैक्सिमम ये लोग काम करते थे, आपने उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया। दूसरे तरीके से आपने कहा कि हम आउटसोर्सिंग करके, और ठेकेदारों को आप उनको वहां पर कह रहे हैं कि आप काम कराइए, और वो ठेकेदार कोई रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वहां से भी आपने उनकी नौकरी ले ली और वहां से भी उनको आपने कर दिया। इस तरीके से जो आपका ये एक चल रहा है पूरे देश में, ये कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, उन्होंने इतनी मेहनत के साथ, एक अथक प्रयासों के साथ, उनके साथ उन्होंने ये इस वर्ग के लिए जो प्रोविजंस किए थे कि जिससे इनकी कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी होती रहें, उनकी रोटी रोजी चलती रहे, उन्होंने इस तरीके के रिजर्वेशन की पॉलिसी ला करके वहां पर रखा था। लेकिन आपने तो सीधा सीधा उसी पे अटैक कर दिया जो बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर को ही आप खत्म किए दे रहे हैं इस तरीके से ला करके। इसलिए मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये कहना है कि इस तरह की जो आप ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये लोग हैं, जो ये वर्ग है, इस वर्ग के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट में है। इसको आपको देखना चाहिए, आपको कंसिडर करना चाहिए। या तो आप ये बताएं, जो जवाब आपके प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया था वह हमारी नेता बहन मायावती जी के सवाल का, वो आज आप ही दे दें कि आप ये जो 49% करके और जो प्राइवेटाइजेशन करके कर रहे हैं, तो इसमें क्या उन पे कोई कंडीशन इंपोज करेंगे कि वो रिजर्वेशन को फॉलो करेंगे? अगर ऐसा है तो आप बताना चाहें, हम आपका स्वागत